We have Justice Kaju speaking again. Let's just listen in. That is for the president, and Article 161 for governor. They only say the president and governor can grant pardon or reduce sentence. But on whose appeal it does not mention. So anybody can make an appeal. Therefore, I am going to make an appeal. For what reason Sanjay Dutt made that statement, I don't know. But I am going to continue on my course because I think Sanjay Dutt and Zaibunnisa both deserve pardon for the reasons I have already mentioned several times on many TV channels. Sir, this case has been in highlights for maybe all wrong reasons and the right ones too. What do you think has really happened that Sanjay Dutt was supposed to come out in the open and talk, saying that he will serve that sentence and not? It may be because some people have been harping that the power of pardon can only be granted for public good. Many TV channels have been harping on this, which is not correct because if you read the leading case on this point, that is the judgment of Supreme Court in Maru Ram versus Union of India of 1980. In paragraph 9 of the conclusion of that judgment, the Supreme Court has categorically said that the considerations for grant of pardon can be myriad, which means thousands. Public good is only one of them. There can be many other considerations like humanitarian consideration, other consideration for grant of pardon. So public good is just one of them, and Supreme Court also has said in that same paragraph 9 of the conclusion in Maru Ram's case that court can only interfere in the order of the president or governor granting pardon in rare and exceptional cases, which is if it is mala fide or totally arbitrary. Otherwise, there is no forum of appeal to the court. The court does not act as an appellate court against the order of the president or governor. It's only in very rare and exceptional cases that court can interfere with an order of the president or governor. That is, if he acts totally mala fide or totally arbitrary. Supposing the president or governor says that all the people in jail in India should be set free, people who are hardened criminals, and everybody should, that would be arbitrary. So it is only in some very rare and exceptional case. Otherwise, normally the order of president or governor is not subject to judicial review. But sir, last question, sir, संजय दत्त खुद पीसी करके कह रहे हैं कि वो माफी नहीं चाहते हैं, आपने अपील की उसके लिए ठीक है, लेकिन वो नहीं चाहते माफी, वो सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन आप अभी भी अपील कर रहे हैं, तो उस अपील का क्या फायदा अगर संजय दत्त खुद तैयार? मैंने आपको अभी एक्यूज कह रहा है कि मुझे 28 मई पर सरेंडर करना है और वो सजा भुगतने को तैयार है, तो वैसी सूरत हाल में क्या इस अपील का क्या मायने? देखिए, अगर आप धारा 72 और धारा 161 संविधान का पढ़ें, उसमें यह नहीं लिखा है कि कौन अपील कर सकता है। धारा 72 प्रेसिडेंट को पावर देता है पार्डन का और धारा 161 संविधान का गवर्नर को देता है। उसमें सिर्फ ये लिखा है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर कैन पार्डन और रिड्यूस सेंटेंस। किसके अपील पे ये नहीं लिखा है, किन ग्राउंड्स पे ये नहीं लिखा, बड़ा वाइड है। एनीबॉडी कैन अपील and there can be thousands of grounds for pardon, not just public good. Only thing it should not be mala fide or arbitrary. तो लिहाजा मैं समझता हूँ संजय दत्त माफी के योग्य है और ज़ैबुन्निसा भी माफी के योग्य है, तो मैं तो अपील करूँ, चाहे वो सरेंडर करने के लिए कहें संजय दत्त। हाँ, वो अब भाई किन वजह से वो कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मेरी तो संजय दत्त से बात नहीं हुई। यानी जो मैंने पहली अपील इशू करी उसको माफ करने के लिए, वो भी उनसे बात किए बगैर, मेरा संपर्क ही नहीं हुआ उनसे। आप समझ लीजिए, उन्होंने मुझे अप्रोच नहीं किया, ना किसी उनके रिश्तेदारों ने मुझे अप्रोच किया। मैं खुद ही, मैंने जब वो टीवी स्क्रीन में आने लगा कि उनको सजा हो गई, फिर मैंने जजमेंट निकाला, सारा स्टडी किया और मुझे लगा कि जो सारी परिस्थितियां हैं कि 18 महीने जेल में रह चुका है, उसके बाद वो बेल पे जब रिलीज हुआ, 5-6 साल लगा उसको अपना करियर रिस्टोर करने में। यानी 5-6 साल उसको सोशली बॉयकॉट कर, उसके दोस्त लोग नहीं मिलने आते थे, कोई फिल्म प्रोड्यूसर नहीं, कोई फिल्म रोल ऑफर करता था, ये डर के मारे कि इनकम्प्लीट रह जाएगी फिल्म क्योंकि जेल चला जाएगा। बैंक लोन नहीं मिलते थे उसको, हर फॉरेन विजिट के लिए उसको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़े, तमाम हार्डशिप्स और इंडिग्निटीज उसको सफर करनी पड़ी। और वो इस बीच शादी हो गई, 2 छोटे बच्चे हो गए हैं, और ये 20 साल में उसने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि सोशल वर्क किया। तो कुछ इंसानियत का नजरिया होता है। आपको याद होगा शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो
फेमस स्पीच है पोर्शिया की, जस्टिस शुड बी टेम्पर्ड विद मर्सी। तो हमको पोर्शिया जैसा होना चाहिए, न कि शाइलॉक जैसे कि हमको एक सिर गोश्त चाहिए संजय दत्त का। अरे भाई सजा हो गई, 5 साल जेल नहीं, मगर उसका इक्विवेलेंट हो गया है। 20 साल तक उसको न जाने क्या क्या जिल्लतें और तकलीफें झेलनी पड़ी। तो अब भाई माफ करो, उसके बच्चे हो गए हैं, कुछ मर्सी भी होती है। और देखिए एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको, पनिशमेंट की कई थ्योरीज होती हैं, आप लोग तो नहीं जानते, हम बता रहे हैं, जैसे डिटरेंट थ्योरी, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी। आजकल ज्यादा एम्फोसिस जो मॉडर्न जमाने में ज्यादा एम्फोसिस दिया जाता है ऑन द रिफॉर्मेटिव थ्योरी, कि उसको रिफॉर्म करो, ना कि उसको कंफर्म्ड वो एक जो रेट्रिब्यूटिव थ्योरी थी कि बदला लेना है, किसी ने गलत काम किया उसका समाज को बदला लेना। मॉडर्न थ्योरी इज मोर एम्फोसिस on the on the reformative theory, मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस, उस पर ज्यादा जोर। तो हमको भी उस नजरिए से उसको माफ करना चाहिए।